Hello, hello, Adab, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and a very good afternoon to you happy people. As always, today we bring you the most beautiful 318 Accelerated Express by Wesley Richards. So the 318 Accelerated Express is a proprietary medium bore developed by Wesley Richards, and it was amongst the preferred rifles which was used in Africa for big game hunting. In fact, it was preferred over the Holland and Holland 375. So the 318 is a thing of legend, and its credentials need no questioning. Formidable in its size, it was the preferred choice of hunters in Africa and around the world with its 250 grain bullet. Extremely versatile rifle. In fact, it was preferred over the legendary 275 and 375. According to sources, Wesley Richards introduced the 318 somewhere around 1910. This particular weapon found its way to my grandfather's armory somewhere in the 20s. So approximately 100 years old. Also used by James Sutherland, the famous African hunter who hunted over 1300 elephants. He in fact wrote that he preferred the 318 to the 577 Nitro. So in a letter to Wesley Richards, he wrote that in the open quarry where long shots are required, he preferred to use the 318 over the 577 Nitro, and of course he mentioned using solid nickel covered bullets. So I thought I'd show you this rifle close up because it's such a beauty, this Accelerated Express 318 by Wesley Richards. So that's the stock. Moving on to the Mauser action. This is probably one of the most beautifully engraved with the gold inlay work Mauser action that I have seen. The engraving on top, the action, some more engraving, the name of the weapon which I'll show you from the other side. So the name of the weapon and the serial number which says Wesley Richards Accelerated Express 318. The sight which goes from 100 to 500 yards, and one more patented thing of Wesley Richards, which is the foresight with the guard. So every foresight actually comes with a number which I can't show you, but that's how it opens and closes. Another piece of trivia, in the movie Out of Africa, the role of Karen, played by Meryl Streep, also used a 318 by Wesley Richards, some beautiful engraving. So there you have two lions, and I'll take it closer. You have a tiger over here. This weapon is just pure class. If I go this side, it's got a takedown lever. One of the few weapons where the stock and the barrel come apart. So there you have it, the beautiful, beautiful 318 Accelerated Express by Wesley Richards. तो साहब 318 की इतनी बात कर ली कि ऐसा लग रही है भोपाली जैसे कह रहे हैं कि मियाँ गोली पहले लग जाएगी और आवाज़ बाद में आएगी. तो ये जो किस्सा है, द मैन ईटर ऑफ सेलमल पानी नसरुल्लागंज के पास एक गांव है. वहाँ पे साहब कुछ खबर आई थी, तो हिजाइनस भोपाल का किस्सा है हमीदुल्लाह खान का. हिजाइनस ने अपना एक शिकारी बुद्धू खान को वहाँ पहुँचा दिया. तो बुद्धू खान वहाँ पे 9 दिन से थे, ये मैनीटर को ट्रैक कर रहे थे, और मैनीटर बहुत स्मार्ट हो गया था. जितने भी भैंसें बनती थी वो उसको मारता नहीं था, और जो अपना जंगल में जो कभी चीतल मार ले कभी सुअर मार ले वही कर रहा था. तो थोड़े ये लोग परेशान हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, करें क्या. 9वें दिन एक किल हुआ, तो जाके उन्होंने इंस्पेक्ट किया, हिजाइनस को फ़ोन किया कि आप फ़ौरन आ जाइए, गारा हो चुका है. तो साहब हिजाइनस वहाँ पहुँचे तो साहब बुद्धू खान ने उनसे कहा कि हुजूर गारा तो हुआ, लेकिन
वो मैन ईटर ने नहीं मारा, उसको मारा एक शेरनी ने। शेरनी आके इसके साथ जुड़ गई है, अब ये दोनों घूम रहे हैं। बुद्धू खान के नॉलेज के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि अब शेर को पकड़ना आसान हो जाएगा। तो साहब थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि क्योंकि किस्सा बहुत ही इसमें ड्रामा भी है, इसमें ट्रेजेडी भी है, इसमें स्टोरी भी है, हाथों लिखा किस्सा है। तो ये मैन ईटर या आदमखोर बना क्यों? तो हुआ यूं कि जो लकड़ी काटने के लिए एक गांव वाला, उसका 9 साल का बच्चा जंगल गए हुए थे, लकड़ी काट रहे थे। इतने में साहब शेर आ गया। जैसी शेर ने इसको लकड़ी काटते हुए देखा, शेर मुड़ा और एक बार उसने किया। ये कुछ घबराहट में, कुछ एक्साइटमेंट में, कुछ डर से इन्होंने उठा के कुल्हाड़ी फेंकी। तो शेर के यहाँ लगी और करीबन 1-2 इंच उसमें घुस गई। उस पे साहब शेर मुड़ा और सीधे इस पे आके कूदा, और ये सब उसका 9 साल का बच्चा पेड़ के पीछे से देख रहा था। उस पे कूदा और उसको लेके चला गया। अब जब गया तो इसका बच्चा भागते हुए गांव गया, और ऐसा घबरा गया था और इतना खौफ आ गया था कि उसको स्टोरी बताने में कुछ घंटे लगे। मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे सांप सूंघ गया और आवाज ही चली गई। तो उन्होंने स्टोरी बताई, तो फिर गांव वाले 4-1 घंटे बाद जंगल की तरफ गए, और 1-2 घंटे ढूंढने के बाद साहब ये नाले में पड़े हुए मिले, मरे हुए थे, लेकिन इसको खाया नहीं था। मतलब शेर ने इसको मार के और फेंक दिया था। तो साहब गांव वालों को वो जो लकड़ी काटने गया था वो मिला साहब, नाली के पास पूरा खूनम खान हो रहा था। उसके बाद जब तक हिजाइनस पहुंचे हैं, इस मैन ईटर ने 20 और लोग उसी गांव में मार डाले थे, पर कोई खाया नहीं था। तो ऐसा लग रहा था कि शेर को अपना पावर दिखाने में मजा आ रहा था, उसको शौक हो रहा था आदमी को मारने का। क्यों? क्योंकि किसी ने उसको एक कुल्हाड़ी मार दी थी। तो एक तो शाम पे साहब वो आके नाले के उस पार खड़ा होके खूब कर रहा था। तो किसी गांव वाले को नाला नहीं क्रॉस करने दिया उसने करीबन 4-5 घंटे तक। ये अब बात ऐसी फैलने लगी, वहां के तहसीलदार ने एक खत लिखा हिजाइनस को कि आप प्लीज आए और इसका कुछ करिए, क्योंकि मतलब एक तो गांव में कोई बाथरूम करने तक नहीं जा रहा, कोई लकड़ी काटने नहीं जा रहा, द सैनिटेशन कंडीशंस आर डिप्लोरेबल, मतलब कि बिल्कुल एक गन मची हुई है गांव में। आप प्लीज आके इसको कुछ करें। तो साहब फाइनली हिजाइनस पहुंच गए। हिजाइनस पहुंचे तो एक पूरा उनको मुआयना लिया, क्या हो रहा है क्या नहीं। फ्रेश वैसे बांध दी गई बेड के लिए। हिजाइनस को बुद्धू खान ने पूरी स्टोरी सुना दी कि क्या क्या हुआ किस दिन। गांव वालों के भी थोड़े हौसले बुलंद हुए कि हिजाइनस को देख के साहब अब ये जो आदमखोर शेर है इसको हिजाइनस मारेंगे। हिजाइनस ने मैप लिया सेनवल पानी का और पूरा एक अपने स्टाफ ऑफिसर्स के साथ बैठ के पूरी प्लानिंग करी कि कैसे हाका होगा। हिजाइनस खुद मचान पे बैठेंगे और 7 टीमें बनाई। उनके खुद के 10 स्टाफ ऑफिसर थे, उनको 7 टीमों पे एक स्टाफ ऑफिसर असाइन किया और हर टीम में 10 बीटर होंगे। और उनका मेन चीज थी कि कोई ये शेर अगर पलट गया तो जाके हाके वालों को खा नहीं ले। तो हाका इस तरह से डिवाइड किया था हिजाइनस ने 7 ग्रुपों में। हर में एक उनका स्टाफ ऑफिसर होगा कि 600 गज मचान से सारे हाके वाले पेड़ों पे चढ़ेंगे और वहां से सीटियां और ये सब बजाएंगे 5 मिनट तक, और फिर नीचे उतरेंगे 50 गज चलेंगे, फिर पेड़ पे चढ़ेंगे। ये सब इसलिए किया था कि शेर को कोई चांस नहीं दिया जाए कि एक और आदमी को मार दे। वो बिल्कुल पूरा हिजाइनस ने सिंक्रोनाइज करके ये कहा था
ग्राउंड जीरो 7:15 इन द मॉर्निंग, 7:15 पे 7:15 शुरू होगा और बिल्कुल क्लॉक वर्क की तरह ये हाका होगा। तो साहब नाश्ता करके 7:15 ये लोग सब पहुंच गए हिजाइनस मचान पे बैठ गए। तो साहब हाका शुरू हुआ, पहली बीट, फिर रुके, दूसरी बीट, तीसरी बीट, चौथी बीट। इससे पता चल रहा था 400 गज, फिर 350 गज, 300 गज। टेंशन बिल्कुल वाटर टाइट टेंशन हो रहा था कि क्या करें। मतलब आते आते जब जब 50 गज दूर थे मचान से, उस वक्त थोड़ा सा हिजाइनस को लगा कि शेर नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल शातिर बैठे हुए थे अपनी 240 एपेक्स लेके। और जब बिल्कुल ही पास आ गया तो एक बहुत बड़ा चीतल अपना सींग बचाते हुए भाग रहा था। तो हिजाइनस से रहा नहीं गया, उन्होंने उठा के 240 से चलाई और वहीं के वहीं चीतल गिर गया। अब जब गिर गया तो सुलेमान खान जो इनके शिकारी थे, क्या मालूम उनमें क्या आया, सुलेमान साहब पेड़ से नीचे उतरे चाकू लेके कि चीतल को ज़िबा कर ले। अब हिजाइनस वहां से उनको इशारे कर रहे थे, मत मत उतरना, मत उतरना, मत उतरना। लेकिन साहब सुलेमान साहब उतर के और चीतल की तरफ आ गए ज़िबा करने। मना कर, इशारों से मना कर रहे, मतलब ये क्या हो रहा है। सब सुलेमान साहब उतरे और चीतल को ज़िबा कर रहे थे। शेर एक चींटी का छत्ते के पीछे बैठा हुआ था, कूदा सुलेमान खान पे, वाह करके ऐसे उन पे कूदा। उसको सुलेमान खान को पीठ से पकड़ के ऐसे 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 हिलाया। उसमें ये लिखा है कि जिस फौज से कूदा था, जो बंदूक की नाल थी वो इतनी जमीन में घुस गई थी जब वो कूदा था। हिलाया ऐसे करके, वहीं छोड़ा उसको, स्ट्रेट गायब हुआ। हिजाइनस उतरे, पहुंचे भागते हुए, बाकी के लोग पहुंचे जब तक तो टाइम हो गया था। तो इमीडिएटली साहब हाका बंद हुआ। हिजाइनस ने सुलेमान खान को, मतलब उनकी सांस तक नहीं आ रही थी, खूनम खान हो गए थे, गाड़ी में रखा और सीधे भोपाल वापस आए। नसरुल्लागंज से हमीदिया हॉस्पिटल में उनको जमा किया, मगर सुबह उनका इंतकाल हो गया। ये उसका साहब 22वां आदमखोर शेर का 22वां विक्टिम था सुलेमान खान। हिजाइनस ने खुंदक में अब तान ली कि अब मैं भी साहब इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसने मेरे स्टाफ को मार दिया। और बिल्कुल हिजाइनस वो हो गए कि अब बस मतलब जैसे दुश्मनी हो गई। हिजाइनस अपने भांजे रशीद मियाँ साहब के पास आए और कहा कि मुझे यासीन खान चाहिए। तो मियाँ हुजूर ने कहा क्या क्या हो गया। तो उन्होंने ये स्टोरी बताई। तो यासीन खान को फिर नसरुल्लागंज रवाना किया गया यासीन खान के साथ, क्योंकि हिजाइनस इतने गुस्से में थे। 5 हाथी नसरुल्लागंज भेजे गए। यासीन खान पहुंचे और हिजाइनस ने मियाँ हुजूर से कहा कि आप भी इस शिकार में मेरे साथ चलेंगे। हफ्ते तक कोई यासीन खान की से खबर नहीं आई। एक हफ्ते बाद यासीन खान ने टेलीग्राम भेजा कि साहब गारा हो गया, आप फौरन आ जाइए। तो मियाँ हुजूर और हिजाइनस गाड़ी में बैठ के उसी टाइम नसरुल्लागंज के लिए निकले। हिजाइनस और मियाँ हुजूर जैसी कैंप पहुंचे साहब, उन्होंने फौरन यासीन खान को बुलाया, एक पूरी रिपोर्ट ली क्या हुआ। यासीन खान ने बताया कि जो गारा हुआ था उन्होंने आंखों से देखा करीबन 2 घंटे तक, मगर करीबन 200 गज पे था। और यासीन खान चांस था, खुद बहुत अच्छे शॉट थे, मगर उन्होंने वो शॉट नहीं लिया क्योंकि वैसे ही वो मैन ईटर था और अगर जख्मी हो जाता तो फिर तो ये मतलब 22 तो क्या कितने लोगों को मार देता। तो उसने वो चांस नहीं लिया। तो ये पूरी रिपोर्ट हिजाइनस को दे दी गई। तो हिजाइनस ने साहब पूरी प्लानिंग करी रशीद मियाँ साहब के साथ। और फिर थोड़ा एक चेंज किया कि हिजाइनस ने कहा कि वो हाथी पे बैठेंगे और मियाँ हुजूर मचान पे, बस यही चेंज किया। और साहब इतनी प्लानिंग कर ली थी कि हर एक को अपना एग्जैक्ट मालूम था क्या करना है। ठीक 7 बजे सब अपनी पोजीशंस पे थे, हाथी मचान वाले सब। मियाँ हुजूर अपनी 450 लेके बैठे
और हाका शुरू हुआ, आते आगे बढ़ा और फिर एकदम से आवाज आई, ऐसा लगा कि शेर दिख गया और उन्होंने सीटियां मारी तो एकदम से और माहौल बहुत टेंस था। और फिर साहब 2 शॉट्स चले तो ऐसा लगा कि शेर मार लिया गया है। दोनों हिज हाइनेस ने ही चलाए थे हाथी से। सो जैसे हिज हाइनेस ने 2 शॉट चलाए, दूसरे हाथी ने एक्चुअल टाइगर को स्पॉट कर लिया था और बिल्कुल एम किया था, तो हिज हाइनेस के तो 2 शॉट चले, उसमें वो शेर वापस जंगल में घुस गया। शेर नहीं मार ली थी हिज हाइनेस ने, शेर गायब हो गया। मचान पे सबकी जान निकली हुई थी क्योंकि ये नहीं मालूम था क्या हुआ। उतने में फिर से एक जिसे कहते हैं ब्रीच ऑफ दिस थिंग हुई और 6 लोग एक्साइटमेंट में, क्योंकि शेर मर गया था तो जरा में बीटर्स जितने आके वाले थे उनमें फैला के साथ शेर मर गया 6 उतर के नाले की तरफ गए, एग्जैक्टली जहां पे मैन ईटर गया था। अब एक आगे चल रहा था रामू और बाकी पीछे थे, और जैसी शेर ने रामू को देखा, रहमानुल्लाह वहीं पे थे, उसको ट्रैक कर रहे थे क्योंकि उन्होंने शेर देख लिया था, लेकिन वो बंदूक की आवाज से भागा। तो जैसे ही रामू ने पानी पिया है और ये 5 पीछे थे, शेर ने साहब उसको आके पीछे से पकड़ के और ड्रैग करके ले जाने लगा। हाथी पे बैठे बैठे हाथी थोड़ा डरा और यूं मुड़ा, पर कैप्टन रहमानुल्लाह लगे रहे, चीखे, अजीब आवाज निकाली, पीटा के उसको रामू को छोड़ दे, लेकिन वो शेर ने रामू को उस टाइम छोड़ा ही। हिज हाइनेस के दूसरे स्टाफ कैप्टन इसरार हाथी से उतार के उसके पीछे चलते गए, लेकिन क्योंकि वो उसको यहां से पकड़ा हुआ था और खींच रहा था, तो उनको चलाने का चांस नहीं मिल रहा था सेफ के, ऐसा नहीं कि रामू को ही मार दे। तो दोनों उसके पीछे चल रहे। इतने में हिज हाइनेस का हाथी भी वहां आया एंड हिज हाइनेस ने महमूद को थोड़ा यूं किया, आगे लो। जैसे ही वो आगे आते कि उनको शेर दिखता, उनको एक चांस मिलता चलाने का। वो मैनीटर इतना तेज था जैसे उसको एक 6 सेंस के हिज हाइनेस का हाथी आ गया, उसने रामू को छोड़ा और सीधे कूद के जंगल में। अब मियां हुजूर जो मचान पे बैठे थे, उनके हिसाब से हिज हाइनेस का हाथी 300 गज पे था और साहब ये शेर अब जंगल में घुसा, तो मचान पे थोड़ी सी वो टेंस हो गई कि कहाँ है। अब साहब हिज हाइनेस भी उसको देख रहे, उनका स्टाफ एक पैरों पे एक और हाथी पे, सब देख रहे कि एकदम से फिर से शेर निकला। वो जैसे ही निकला तो हिज हाइनेस का हाथी करके किया और वो यूं हुआ, तो हिज हाइनेस जब तक मुड़ते इतना हिल रहे थे कि उनको वो शॉट नहीं मिला। और फिर ये फिर जंगल में घुसा। अब मचान वाले बिल्कुल टेंस बैठे हुए हैं। उतने में साहब बुद्धू खान जो कि लेफ्ट फ्लैंक पे बैठे हुए थे मियां हुजूर के, उनके लाल चींटियां चढ़ गई तो वो मचान से नीचे आ गए। मचान के नीचे आके यूं झटक रहे थे कि लाल चींटियां निकल आए, कि उतने में से फुल गैलप पे जो मैन ईटर निकला करीबन 50 गज पे, फुल मतलब गैलप पे। और ये बुद्धू खान मियां हुजूर के मचान के नीचे खड़े हुए झटका रहे, देखते यूं ही रह गए। जैसे शेर को देखा, मियां हुजूर ने बहुत आराम से पहली गोली चलाई, तो कहते हैं कि यहां लगी रिब केज में लगी, तो वो जोर से करके किया उसने, और इन लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। और फिर चार्ज, फिर थोड़ा उनको साइड का शॉट मिला तो शोल्डर पे चलाई तो गिरा, और फिर चीखा करके और सीधी उल्टी तरफ घास में घुस गया। अब इनके हिसाब से वो मर गया, लेकिन कोई अभी तक हिल नहीं रहा था। तो जब मियां हुजूर ने नीचे देखा तो बुद्धू खान ने हक दिया था। उसी हालत में मियां हुजूर कहते हैं कि ओपियम की वो निकाल के उसने यूं मल के खाई और वहीं के वहीं बैठा रहा। मियां हुजूर ने फिर से बंदूक लोड करी और वॉक करके गए, तो द किलर ऑफ सैमुअल पानी वॉज डेड। हिज हाइनेस भी पहुंच गए। हिज हाइनेस पर खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने आके मियां हुजूर को रामू की स्टोरी बताई कि ही गॉट ड्रैग, मगर फॉर्चुनेटली रामू को उस टाइम पे ही सर्वाइव्ड, वो जिंदा रहे ये स्टोरी बताने के लिए। और उसको जब
वापस लेके टैक्सीडर्मी वगैरह कराई, वो दोनों शेर और शेरनी की। तो शेर जो मैन ईटर था वो इतना बड़ा साइज में नहीं था। उसका पोस्टमार्टम भी कराया गया। एक चीज जो मियां हुजूर ने लिखी है कि शेर के बाल बहुत कम थे, उसमें कोई ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी दिखी नहीं जिसके कारण कि वो आदमखोर हुआ। और दूसरी चीज ये थी कि ये अंदाजा लगाया गया कि उसको वो ज्यादा हौसला बुलंद होते गया उसको मजा आने लगा, एक सुपीरियोरिटी आ गई कि आदमियों को मार रहा था। तो जब भी मिलता था, क्योंकि खाता नहीं था। और दूसरी चीज जो थी, जो हल्का सा उसका जो यहाँ पे कुल्हाड़ी से जो लगी थी, वो हो सकता है उसको ये याद दिलाती हो कि ये उसके साथ किया गया है और इसीलिए वो अटैक करता था। मियां हुजूर बहुत खुश थे कि ये मार दिया गया। पूरा गांव मतलब खूब वहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ। और ये थी साहब, ये था किस्सा मैन ईटर और सैमुअल पानी का। आई होप आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। आदाब आदाब, एब्सोल्युटली ट्रू स्टोरी, straight out of the archives of my grandfather. I hope you enjoyed. Please subscribe. खुश रहिए, आबाद रहिए। और हम आपको ये भोपाली ओरिजिनल स्टोरीज लाते जाएंगे और आपको खुश करते रहेंगे।